So today we will be starting with the 12th standard syllabus of accounts, and I think this is the first class for 12th. पहली क्लास है 12th के लिए, मैथ्स की हुई इसके पहले. So I am back with accounts in your 12th class. I'll be taking accounts if all goes well for the year. आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं है, सर ने सडनली बीच में क्यों छोड़ दिया. तो मैंने आपसे कहा I had multiple health issues and which were quite life-threatening also. Fighting with all such what you call health issues. I have come back because I know unless I start teaching again I won't be fit. और मैं यानी कि इतनी आदत है पढ़ाने की कि नहीं पढ़ाऊंगा तो बीमार ही रहूंगा, तो बीमार नहीं हूं मैं अब. This is my third class, so hopefully all goes well, no problem. हम 12th स्टैंडर्ड में आप अगर स्क्रीन पर देखें, अच्छा मिररिंग नहीं किया, मैं कर देता. Now as you see on the screen, your syllabus, almost half of the syllabus comprises of partnership firm. So final accounts partnership, reconstitution of partnership firm, that is admission of a new partner, retirement of a partner and death of a partner, and then dissolution of partnership firm. There is one more final accounts of non-profit organizations. तो दो फाइनल अकाउंट्स हैं. ये दोनों चैप्टर्स में से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 12 मार्क्स ईच, फ्रॉम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एंड फ्रॉम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. बाकी जो हैं 10 और 8 मार्क्स के हैं, मोस्टली 10. ओके. Now, then apart from this, there is bill of exchange, company accounts, that is issue of shares, analysis of financial statement, and computer in accounting, which is a theoretical chapter mostly. ठीक है, वो आपको कंप्यूटर वाली मैडम पढ़ाएंगी. कौन सा? कंप्यूटर इन अकाउंटिंग लास्ट में. ठीक, प्रैक्टिकल सारे मैं करवाऊंगा. और मैंने आपसे कहा था, आई हैड आस्क्ड यू टू रीड एंड कम 11th standard sole proprietors partnership final accounts go through करा. मैंने कहा था go through करके आना है, because what we are going to study as a partnership final account is nothing but an extension of the basic principles, all remain the same. पार्टनरशिप फर्म या एक्ट के अनुसार जो भी प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के, उसके अनुसार जो चेंजेस हैं वो हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो 11th में नहीं थे. 11th में सोल प्रोप्राइटर का था, अभी पार्टनरशिप फर्म का है. सो आई हैव माय प्लान रेडी फॉर टीचिंग एंड वी शैल सून स्टार्ट. मेरे प्लान में ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस हैं फाइनल अकाउंट्स के, जो हम क्लास में और होमवर्क के रूप में करेंगे. Is that okay? Not every question in the class. It is not impossible. Initially आपको 5 क्वेश्चन तक कोई होमवर्क नहीं मिलेगा जब तक मैं 5 प्रॉब्लम्स क्लास में सॉल्व कर लूं. Then I will start giving in between homeworks. Is that clear?
आई ऑल मार्क कौन सा क्वेश्चन होमवर्क को देना है, कौन सा क्लास में करना है, सब मेरी तैयारी है, ठीक है. सो वी विल बी डीलिंग विद द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद partnership final accounts. What is a partnership firm? When two or more persons come together to set up an enterprise, it is termed as partnership. Two or more. Sole proprietorship, you have seen, is an enterprise which has limited amount of capital, because capital is contributed by one person. Sole proprietorship has limited managerial ability, because one person is managing the business affairs. Okay, so we find there are many such unlimited liability है, stability नहीं है sole proprietorship में. Why is unlimited liability? I hope you know. When the liability of the entrepreneur extends up to his private assets, we say his liability is unlimited. In other words, if the business liabilities become more than the business assets, we say he has become insolvent. ठीक है. And if business assets prove to be insufficient to pay off the business liabilities, ठीक है ना, sole proprietor will have to sell his private property in order to repay the business liability. So we say his liability extends not only, is not limited up to the business assets only. ठीक है ना, केवल बिजनेस एसेट तक उसकी लाइबिलिटी सीमित नहीं है, वो उसके प्राइवेट एसेट्स तक जाती है. मतलब बिजनेस लाइबिलिटीज का रीपेमेंट करने के लिए बिजनेस एसेट्स के अलावा उसके प्राइवेट एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है लाइबिलिटीज को पे करने के लिए. दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सो इन दिस वे देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी नो is confronted by a sole proprietor. Now what happens is, as the business expands, there is a need for more capital, there is a need for more persons to manage the business, and hence came into existence the next form of business organization that we are going to study, the partnership firm. Okay, so partnership firm, therefore, as said, is an business organization where two or more persons come together to undertake some legal business activity. मैं legal इसलिए बोल रहा हूं कि illegal business के लिए partnership नहीं बनाई जा सकती. It is always, the business has to be always लीगल बिजनेस. तो स्मगलिंग के लिए आप एक साथ नहीं आ सकते, पार्टनर्स नहीं बन सकते, और अगर बनते भी हैं तो वो रिकॉग्नाइज नहीं, इट इज अनलॉफुल. ओके, लेट अस सी द डेफिनेशन. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 सबसेक्शन 4 defines partnership. It is a relationship between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. It is those who have agreed. It is a relation. पहली बात तो ये है कि पार्टनरशिप खत्म कब होती है? जब दो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो खत्म हो जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो पुराना रिलेशन, मान लो 3 पार्टनर्स थे, तो जो रिलेशनशिप 3 पार्टनर्स में था वो एक रिटायरमेंट लेने की वजह से दैट रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड एंड देयर इज अ नीड टू हैव अ न्यू अग्रीमेंट. देयरफॉर आपने अगर इंडेक्स में देखा होगा तो वहां पर दिया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन के 3 हिस्से हैं: एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर. ठीक है, ओल्ड रिलेशन कम्स टू एन एंड. तो जब दो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप खत्म होता है तो हम बोलते हैं द पार्टनरशिप हैज कम टू एन एंड. इज दैट क्लियर? Therefore, it is a relation between persons who have agreed to share profits of a business. So naturally, when there are 2 or more persons, there has to be some agreement. और टेक्निकली हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड.
हम देखेंगे अभी. पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट एन agreement between the partners. This agreement relates to the contribution of the capital by each partner. It relates to profit sharing ratio. It relates whether salary is to be paid or not to any partner, etc. So the various agreements, understandings, when laid down in a written form, is called as partnership agreement or partnership deed. Is that okay? So those who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. So it depends upon the agreement कि सारे पार्टनर्स डे टू डे अफेयर बिजनेस अफेयर्स मैनेज करेंगे, या अगर 3 पार्टनर्स हैं 4 पार्टनर्स हैं तो एक ही पार्टनर पूरा बिजनेस संभालेगा ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स. सो इट इज understanding between the partners in a firm. Therefore the definition says carried on by all or any one of them acting for all. तो अगर any one acting for all है मतलब that partner has got the right from the other partners to enter into business deal with the other parties, other third parties of the business. Is that clear? They have authorized him to carry on the business, take the decisions of all, and to enter into business contracts or deals with the other parties. Okay? According to Professor Handy, partnership is a relation existing between persons competent to make contract who agree to carry on a lawful business in common with a view to earn profit or gain. वही बात घूम फिर के आती है. इट्स अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स. ओके, कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट. द पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट का मतलब जिसको जो है ना, जिसको राइट हो टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टीज. ठीक है ना. तो यहां पर अभी प्रीवियस डेफिनेशन में हमने देखा कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन acting on behalf of all. Is that clear? So all partners are actually competent to take to enter into any type of business contract with the third parties. Okay, who agree to carry on a lawful business. Again, few minutes back I had said that lawful business ही होगा, illegal business नहीं होगा. Lawful business in common with a view to earn private gain or private profit. Let's see the features of partnership firm. First feature is that there is an agreement. There is an agreement among the partners. मैंने अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल छोटे छोटे कोट किए. एग्रीमेंट किस बारे में होगा? नंबर 1 एग्रीमेंट होगा कि कौन सा पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर्स के बीच में कितना क्या बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना है. ये सब बातों का उल्लेख किस में होता है? एग्रीमेंट में होता है. सैलरी पे करना है या नहीं करना है, करना तो उसकी क्या कंडीशंस होगी. ऑल दीज आर लेड डाउन इन डिटेल इन द पार्टनरशिप agreement called as deed. Number of partners minimum 2 and maximum 50 according maximum number of partners have now increased to 50 according to Companies Act 2013. ठीक है. So minimum and lawful business already बताया. Sharing of profit and loss. Now this is one of the agreement that has to be entered. But if the partnership deed is silent about the sharing of the profit and losses, अगर partnership deed में किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस डिवाइड होगा मेंशन नहीं है तो इक्वली, यानी कि हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर उसमें हमको रेशियो दिया है क्वेश्चन में तो उस रेशियो के अनुसार डिवाइड करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को, और अगर नहीं दिया है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स. ठीक है. देन द अनलिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल.
That is, partners are liable till the last rupee in their pocket. If assets of business is not sufficient to pay the liabilities, then personal property of partners can be used. If any of the partner is declared insolvent, then his liability would be borne by the others. मगर पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी का पेमेंट करना, पे ऑफ करना जरूरी है. हम जो आने वाले दिनों में एक चैप्टर पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें डिसोल्यूशन का एक रीजन है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, वन पार्टनर, टू पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स. ठीक है, तो उस केस में किस तरह से बिजनेस की लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है. ठीक है, तो यहां पर जब हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड उसका मीनिंग एक्सप्लेन किया. दैट इफ द बिजनेस असेट्स प्रूव टू बी इनसफिशिएंट, देन इन दिस केस ऑल्सो, इन पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो केस ऑल्सो, the partners will have to bring additional amount of capital from their private sources to pay off the business liability. It is joint and several. Joint यानी सबकी मिलाकर एक साथ liability है पार्टनरशिप फर्म के प्रति, यानी उसकी liabilities पे ऑफ. सेवरल यानी इंडिविजुअली भी वो उनको पे करना पड़ सकता है. इसलिए तो वो बात आती है ना कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उसकी जितनी लायबिलिटी है दैट विल बी बोर्न, दैट विल बी शेयर्ड बाय द अदर सॉल्वेंट पार्टनर. तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी जिसका दिवालिया निकल जाता है, जिसकी लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो जाती हैं, और तो हम बोलते हैं क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवाला निकल गया, एक्सेट्रा, अलग अलग टर्म अलग अलग भाषाओं में. ठीक, तो वो पार्टनर जब उसका शेयर लायबिलिटी के लिए पे ऑफ करने के लिए नहीं ला पाता, तो वो कौन लाता है, बाकी के दो सॉल्वेंट पार्टनर्स. इज दैट क्लियर? इसलिए जॉइंट एंड सेवरल. जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यस, ऑल पार्टनर्स आर ओनर्स. ठीक है, आर द ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज, एंड देयरफॉर ऑल पार्टनर्स हैव अ राइट टू मैनेज द डे टू डे बिजनेस affairs, business activities of the partnership. So all are jointly responsible as far as decisions are to be taken, as far as what you call expansion or diversification of the business is concerned. All will be equally responsible. All important decisions will have to be taken jointly by all the partners, principal and agent. हर पार्टनर दो रोल प्ले करता है, प्रिंसिपल का भी और एजेंट का भी. ठीक है ना? अ पार्टनर एक्ट्स एज प्रिंसिपल. Acts as a principal means acts as a owner for the third parties. Dealing with the third parties, he acts as a principal and he also acts as an agent, because अगर वो अकेला है, डील कर रहा है थर्ड पार्टी से, तो there he is not only the owner but also the agent of the other parties, because he is carrying on that contract, deal, agreement, जो भी वो negotiation कर रहा है, he is also doing on behalf of the other partners as well. दूसरे पार्टनर्स के लिए भी कर रहा है. इसलिए वहां पर वो बोला है पार्टनर acts as a principal of the firm with outsiders and with other partners he acts as an agent. ठीक है? Dissolution. Partnership firm can be dissolved when the relationship among the partners come to an end. We say there is partnership firm is dissolved. ठीक है? अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से भी हो सकती है, आपस में आम सहमति से वो बंद कर सकते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर इफ एनी पर्टिकुलर पार्टनर वांट्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, ही शुड गिव एटलीस्ट अ नोटिस ऑफ 14 days. ओके, एंड कैन बी डिसॉल्व. अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे थे. रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों? Partnership firm comes to an end when any new partner is admitted. So old partnership comes to an end because the old relationship, old agreement and relationship खत्म हो जाता है, और दो पार्टनर हैं, तीसरा एडमिट किया, नया एग्रीमेंट बनेगा, नया रिलेशनशिप बनेगा तीनों पार्टनर्स के बीच में. इज दैट ओके?
कोई पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर मर जाता है तब भी ओल्ड रिलेशनशिप खत्म होगा और नया रिलेशनशिप और पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स ये सब बनेगा. आई होप दैट्स क्लियर. तो ईच टाइम अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, द ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. ठीक है. ईच टाइम द पार्टनर ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म डाई, बिकम मैड और इज इंसॉल्वेंट. ठीक है ना. ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन end and the remaining partners may decide to continue, so a new relation, new agreement would come to into existence. Is that clear? Now देखें, पार्टनरशिप डीड का एक आपको नमूना दिया हुआ है. ठीक. It is, as I said, I have been repeating, it is nothing but an agreement. अब किन बातों पर agreement होती है? What does the partnership deed contains? Name and address of the firm and its main business. Name and address of all partners and duration of the partnership. Capital contributed by all the partners, ratio, profit sharing ratio, rights, duties, liabilities of the partners. ठीक है. राइट्स क्या है हर पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में, ड्यूटीज क्या है, whether the partnership firm will be managed by one or by all. If it is managed by two or more partners, there has to be a clear cut what you call division of work among the different partners. That is called as assigning the duties. तो एक आदमी पूरा पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस नहीं मैनेज करेगा. उस केस में जो भी मैनेज करना है that will get divided. That is normally called as division of labor. So the entire work of running the business of a partnership firm gets divided. Therefore, the duties assigned to each partner must be very clearly defined or clearly stated in a partnership deed. Is that okay? Duties, liabilities अभी हमने देखा. Provisions related to admission, retirement and death of a partner. मैंने एडमिशन के समय कोई स्पेसिफिक कंडीशन, कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, ठीक है, असेट्स को वैल्यू रीवैल्यू करना है या नहीं करना है, ऑल सच एस्पेक्ट्स जो हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ऑल दोज कंडीशंस हैव टू बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. देन सैलरीज, कमीशंस इफ पेबल टू एनी पार्टनर्स. मैं ये भी आपको बता रहा था क्योंकि लॉ में कुछ मेंशन नहीं है, जो वो आपके पार्टनरशिप डीड में आएगा वो करना पड़ेगा. अगर मेंशन नहीं है कमीशन पे करना किसी पार्टनर को या सैलरी पे करना किसी पार्टनर को या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर नहीं करना, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो कुछ भी अकाउंटिंग में आएगा नहीं. अगर वो उनको पे करना है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे किसी पार्टनर को सैलरी पे करना हो, चाहे किसी पार्टनर को कमीशन देना हो, एक्सेट्रा. ठीक है ना. वो सब किस में होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में. वो पार्टनरशिप डीड के अनुसार ही ये सब पेमेंट्स होंगे. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वुड बी क्लोज्ड एंड द अकाउंट्स किस तरह से सेटल करेंगे, कब? व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज बीइंग डिसॉल्व्ड. ठीक है. ये सारे प्रोसेसेस हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पढ़ने वाले हैं. मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, ये अलग चीज है. आपस में मतभेद हो सकता है, दो भाई लड़ पड़ते एक दूसरे से, तो वहां पर पार्टनर्स हैं, उनके बीच में कोई किसी मुद्दे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, कभी बात बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है. ठीक है ना. तो उसको कैसे सेटल करना, किस तरह से उसको एडजस्ट करना, थोड़ा बहुत ब्रॉड कंसेंसस उसके बारे में होगा. एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है? इज इट अब ये ओरल भी हो सकती है पार्टनरशिप डीड या रिटन, तो दोनों में से क्या बेटर है? रिटन फॉर्म में बेटर है. ठीक है. ओके. बिकॉज अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट उसमें मेंशन है कंडीशन, उसके हिसाब से सेटल करना आसान रहेगा. और अगर ओरल एग्रीमेंट है तो ओरल एग्रीमेंट को तो कभी भी कोई भी डिनाई कर सकता है. बट व्हेन द एग्रीमेंट्स आर लेड डाउन इन अ राइटिंग फॉर्म इन अ प्रॉपर स्टैम्प पेपर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, देन
everything would have to be carried on accordingly, and therefore nobody can deny or dispute what is mentioned in the partnership deed. ठीक है, provision of partnership act. Now at the time of formation a partnership form, a document is prepared called as partnership deed, and all the conditions are maintained. But if the deed is silent about any point, then this issue is solved as per provisions of Partnership Act of 1932, section number 12 and 17 are made applicable. Let us see. Number 1 is distribution of profit. कैसे distribute होगा? Partnership deed, the ratio mentioned in the partnership deed. But if partnership deed is silent about the profit sharing ratio, then equally among the partners. Interest on drawings. पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार आपको if the क्या बोलेंगे जरा, as per provision of partnership act, if the date of drawings is not given. अब ये कई बार आपको क्वेश्चन में आएगा, डेट दिया होगा ड्राइंग्स का, कई बार डेट नहीं दिया होगा, ठीक है। और अगर डेट दिया है ड्राइंग्स का तो डेट के अनुसार इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो एवरेज बेसिस पर 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। मगर आगे बढ़ने के पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर की इनकम है या पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस की है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, if a partner provides additional amount to the business as a loan, the rate of interest on loan is not given, then 6% interest is allowed. So if partnership deed is silent about the interest to be paid to a partner on the loan given by him, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कई बार लाइबिलिटी साइड आपको पार्टनर्स का लोन दिया होगा। इज दैट क्लियर? अगर लोन दिया है, डेट दिया है, तो डेट के अनुसार इंटरेस्ट उसको पे करेंगे कैलकुलेट करके, और अगर नहीं तो 6 रेट दिया तो रेट के हिसाब से, नहीं तो 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट, ए पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। मैंने आपको बोला जो कुछ भी उनको देना लेना है वो सब किसमें मेंशन होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। सैलरी एंड कमीशन, पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार कोई सैलरी कमीशन इज नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर। अगर उनको पे करना है तो अगेन दैट शुड बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, ओके। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, but new partner can be admitted only if all the partners agree unanimously, ठीक है ना। अगर मिस्टर ए बोले कि मेरे बेटे को पार्टनर बना लो, तो बी और सी को उसमें यूनानिमसली एग्री करना पड़ेगा। अगर एग्री होते हैं बाकी पार्टनर्स तभी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, वरना नहीं कर सकते। मेथड्स ऑफ कैपिटल, यस, 2 मेथड्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये 2 मेथड्स क्या हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 तरीके हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स ओपन करते हैं पार्टनर्स के। वन अकाउंट इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड सेकेंड इज द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। नाउ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इफ ओपन टुगेदर, all the necessary adjustments relating to partners, all such adjustments will be done in the current account, and as a result therefore the balance in the capital account would remain the same year after year. It is a balance of the current account that will keep on changing. Is that clear? इसे वो मेथड को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मैं आपको बार बार क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो मैं पूछूंगा, ठीक है, मैं पूछूंगा। इसको बहुत नींद आती है, लोग थर्मस पानी की लाते हैं, तुम चाय की लाया करो, तुम भी पिया करो, मेरे को भी पिला दिया करो। थक जाती क्या? दूर से आते
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे सब क्या बोलेंगे, थोड़ा सा वातावरण भी ठंडा हो जाता, क्लास में आके सब कूलर वूलर चलते रहते तो नींद आना स्वाभाविक है। मैं आपकी गलती नहीं मानता उसमें। अब एक सिंपल सी बात है, मेरी पिछली क्लास 2 से 3 बजे तक थी, जो आज बैच शुरू हुआ अप्रैल बैच उसमें, और 2 से 3 की क्लास आखिरी क्लास थी, वो बैच की आखिरी क्लास थी 2 से 3। अब मुझे बताओ, सुबह से आया बच्चा 2 बजे तक पहुंचते पहुंचते हिज एनर्जीज आर ड्रेन्ड आउट। फिर वो जबरदस्ती आधे मन से, सबकी एनर्जी उतनी नहीं रहती लेवल, तो स्वाभाविक सी बात है वो स्थिति में कईयों को झोंके लेते हुए देखते नहीं किए। बराबर मुझे आदत है इस बात की, क्योंकि हर एक को लगता मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या मेरा प्रैक्टिकल है तो मैं पहले कर लूं, बाकी सब बाद में। हाउ सेल्फिश। और मेरा यह मानना है कि फाउंडेशन में ये एक इकोनॉमिक्स ही अब ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 200 से पार कराएगा, या आपका ओवरऑल स्कोर अगर 200 से ज्यादा हो चुका है, आता है, तो उसके स्कोर को हायर साइड में पुश करेगा। वही एक ऐसा सब्जेक्ट है। आप माने ना माने मेरी बात को, कई लोगों को ये बात मैं सब बच्चे से बोलता हूं, सब लोग यहां से सुनते और यहां से निकाल देते, मगर बाद में रियलाइज जब करते उनमें से कई लोग तो आके बताकर जाते, बोलकर जाते। उस वक्त जब मैं बताता हूं, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं, तो कई लोग ऐसे ही बोल रहा है, अपना सब्जेक्ट है तो बोलेंगे ही, हाँ ऐसे ही लगता ना। मगर मैं बता रहा हूं 200 पार करने में, या 200 पार आप होशियार है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो हायर साइड में पुश करने के लिए अगर आपका थोड़ा, क्योंकि अकाउंट्स और मैथ्स, अकाउंट्स और लॉ, ठीक है ना, ये डिस्क्रिप्टिव हो गए। लॉ की लैंग्वेज जरा अलग होती है, लीगल टाइप वर्ड, टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, ये सब यूज करना पड़ता है, बराबर। इसलिए लॉ थोड़ा सा अब बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। नहीं तो पहले जब लॉ ऑब्जेक्टिव था तो इकोनॉमिक्स और लॉ में बोलता था कि ये 2 सब्जेक्ट्स हमारे बहुत फायदे वाले हैं, क्योंकि लॉ में भी बहुत बढ़िया मार्क्स मिल जाते थे। कब? जब मल्टीपल चॉइस था। अब हो गया डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। वहां तो नहीं लिख सकते ना, ओपन द डोर्स ऑफ द विंडो लेट द एयरफोर्स कम इन, उस टाइप की इंग्लिश नहीं लिख सकते। लीगल लैंग्वेज, लीगल टर्मिनोलॉजी प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, बराबर। तो ये 2 सब्जेक्ट्स, अगर ये 2 सब्जेक्ट में थोड़ी कभी गड़बड़ हो गई पढ़ने में या एग्जाम के दौरान, तो उसको कॉम्पेंसेट कौन सा सब्जेक्ट करेगा? तो हर सब्जेक्ट का नुकसान कॉम्पेंसेट करने के लिए ज्यादातर आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा। इसलिए मैं बोलता 200 मिलना, ठीक है। अगर इसको मैथ्स में अच्छे मिल गए, ठीक है, अकाउंट्स में भी ठीक ठाक मिल गए, ठीक है, या लॉ में थोड़े कम हो गए, 45 भी आ गए 100 में से, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसका बाकी सब्जेक्ट्स का स्कोर तो अच्छा है, सिर्फ लॉ में कम होगा। अब अगर इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स मिले तो ओवरऑल स्कोर पुश हो जाएगा ज्यादा हायर साइड में, समझ में। तो ये हर सब्जेक्ट का हम बोल नहीं सकते ना कौन से सब्जेक्ट में हमारा कम ज्यादा, भगवान करे सभी चारों सब्जेक्ट अच्छे जाए, सबके पेपर अच्छे जाए, सब में अच्छा स्कोर मिले, मगर कभी गड़बड़ भी तो हो सकती है, ठीक है ना। नथिंग, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। तो वहां पर ये इकोनॉमिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो 200 पार करने में, और दूसरा अगर स्कोर अच्छा चल रहा है, एक आध सब्जेक्ट में स्कोर थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया, तो इकोनॉमिक्स उसको कॉम्पेंसेट करता है और आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो हायर साइड में जाता है। इतना मेरे को समझ में आता है। सो अगर 2 बजे का पीरियड रखेंगे तो आधे लोग तो वैसे ही सोएंगे, सारे पीरियड 2 बजे रखेंगे, पूरे सुबह से आए हुए क्लास अटेंड करते हुए आखिरी पीरियड इकोनॉमिक्स का, तो जरा सा मुश्किल जाता है ऐसे बैचेस में पढ़ाना जहां पे इकोनॉमिक्स लेटर स्टेज पे आता है। थोड़े अर्लियर पीरियड्स में हो, पहले 3 में, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। मैं तो प्रिफर करता हूं पहला हो,
मैं तो बोलता हूँ मुझे 7 बजे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। बाबूजी घर में बैठ के क्या करेंगे, 5 बजे उठ जाते हैं, आ जाएंगे इधर, ठीक है, आ जाएंगे इधर, 7 बजे की क्लास ले लेंगे, 7:30 की क्लास लेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई गेट अप एट बिटवीन 4:30 and 5, दैट्स ऑल, बस इतने बजे उठ जाता हूं मैं, कोई भी हाल, तो मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है। पर वो टाइम टेबल ऐसा बनता है कि गड़बड़ हो जाती है। चलिए कम बैक, फिक्स कैपिटल मेथड, और ये सिस्टम भी मुझे पसंद नहीं है। मैं आज ही उनको बोल के आया, ये एक या 2 पीरियड तुम्हारे स्टेट बोर्ड के और फिर उसके बाद वो फाउंडेशन के, ये भी मुझे पसंद नहीं है। मैं बोला अगले साल से बिल्कुल क्लियर कट टाइम रखना, जब स्टेट बोर्ड शुरू होगा कर पढ़ाना, जितने समय सिर्फ स्टेट बोर्ड पढ़ा, और जितने समय फिर तुमको फाउंडेशन पढ़ाना है तो पूरा सीए फाउंडेशन पढ़ाओ, ठीक है। तुम्हारा मैथ्स है क्या? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनका मैथ्स नहीं है? थोड़े लोग हैं ना, है ना, थोड़े लोग। अब मुझे बताइए 2 सब्जेक्ट की क्लासेस ज्यादा है, किसकी? मैथ्स की और अकाउंट्स की। अब जिनका मैथ्स नहीं है या जिनका सीए फाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना, जिनका मैथ्स नहीं है और सीए फाउंडेशन नहीं है, वो तो बेचारे एक ही पीरियड के लिए आएंगे अकाउंट्स के, अगर आए तो। है ना, वो तो इंपॉर्टेंट है, बराबर है, इंपॉर्टेंट। आप समझे मेरी बात? और इट इज, ये नेचुरल है, इट इज नेचुरल, सो आई प्रिफर दिस, ठीक है। चलो एनीवे, वो उन्होंने कर दिया, ठीक ठाक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। वो होता है कई बार, इट गेट्स ओवरलुक्ड, सो यू नीड नॉट वरी। तो फिक्स कैपिटल मेथड में कौन से 2 अकाउंट्स ओपन करते हैं पार्टनर्स के? नंबर 1 कैपिटल एंड नंबर 2 करंट। Second is the fluctuating capital method. Fluctuating means which keeps on changing. Now अभी हमने fixed capital में देखा कि all adjustments relating to partner is done in the current account of the partner, so the balance in the capital account remains same. Therefore it is called as fixed capital method. Is that okay? फ्लक्चुएटिंग में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट ओपन करते हैं और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। एंड ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द पार्टनर इज डन इन हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में ही सब एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का साल के शुरू में, बाय द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस विल चेंज, बिकॉज वो सब एडजस्टमेंट जो हम करंट अकाउंट में कर रहे थे फिक्स कैपिटल मेथड में, वो अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कौन से अकाउंट में कर रहे हैं? कैपिटल में। सो द अमाउंट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट विल कीप ऑन चेंजिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब नॉर्मली हम कौन कौन से ये एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये एग्जाम्पल देखें। Drawings made by the partner in the current year, goods or any asset taken over by the partner, interest on partner's capital, interest on partner's drawing, salary commission payable to partner, distribution of profit and loss. All these are the adjustments relating to partners. Naturally उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में वही एडजस्टमेंट का इफेक्ट आएगा जो पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर्स से रिलेटेड है, ओके। चलिए मैं ये सब कैलकुलेशंस अभी कुछ नहीं, मैं साथ साथ बताऊंगा प्रॉब्लम के। मैं अपने पढ़ाने का तरीका भी बता दूं आपको। पवन सर ने किस तरह से पढ़ाया मुझे मालूम नहीं, हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हाँ, मैं भी डायरेक्ट ही लूंगा अभी इसके बाद और साथ साथ बताऊंगा, मगर yes, so we will be dealing with the various steps in preparation of accounts. आपको हेलो, जर्नल सब्सिडियरी बुक्स 11th में पढ़ा, जर्नल से लेजर पोस्टिंग पढ़ा,
ठीक है, लेजर से बैलेंसेस निकालकर ट्रायल बैलेंस बनाएं, ट्रायल बैलेंस के ऊपर से फाइनल अकाउंट्स बनाएं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ओके, यहां पर भी वही सब बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। what is a trading account? नहीं, you raise your hands, don't, no chorus answers. What is a trading account or why do we prepare the trading account? Sole proprietor का किया ना? Yes. हाँ, that's one of the objective, मगर उसमें क्या एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट, उसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? देखो, ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, सो ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। Is that clear? Now all the expenditures that are related with the purchases of goods are recorded in the trading account. Okay, अब ध्यान दें, यहां पर परचेज दो तरह से, फर्म बिजनेस दो तरह से चलाया जा सकता है। नंबर एक, you directly buy the ready-made goods and then sell it. Second, you buy the inputs, raw material and other inputs, labor etc, manufacture it, process it, manufacture it and then sell it, and then तो बाइंग एंड सेलिंग दो प्रकार, बाइंग दो तरह से हो सकता है, सीधा बना बनाया खरीदना और बेचना, या बनाकर बेचना, या फिर बनाकर। तो बनाने के लिए जो भी इनपुट्स लगेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड, दैट इज कंसिडर्ड एज परचेसेस, दैट इज कंसिडर्ड एज परचेसेस। इसलिए व्हेन यू सी दिस फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट यू विल फाइंड all the factory expenses are written over here which are a part of, all these are needed for manufacturing the goods. That means all these are the expenses relating to purchases by a factory, I hope that's clear. अब इसमें एक एक देखते हैं। opening stock means stock of good unsold goods of the previous year. प्रीवियस ईयर में वो क्लोजिंग स्टॉक था, करंट ईयर जब नया शुरू हुआ तो वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। दैट स्टॉक द पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी possess. Okay, then comes purchases, purchases minus return outward, purchases of goods, purchases of goods minus return outward means purchase return, जो खरीदा ड्यू टू सम डिफेक्ट और एनी अदर रीजन वापस किया। तो हम क्या कितनी कौन सी परचेजेस कंसिडर करेंगे? परचेज का एक्सपेंडिचर नेट, परचेज माइनस रिटर्न्स। इज दैट क्लियर? आप जैसे मैंने बोला परचेज ये दो तरह के हो सकते हैं, रेडीमेड खरीदा तो नो प्रॉब्लम, मगर मैन्युफैक्चरिंग करके बनाकर बेचा तो परचेसेस किसका हो जाएगा? परचेसेस नीचे देखो दिए बहुत सारे, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, कोल, कोक, गैस, पावर, रॉयल्टी, ग्रीस, ठीक है। हेलो, आई होप ये सब अगर आप पढ़ते हो तो ये एक्सपेंडिचर को मैं एक हेड के अंदर ब्रॉडली डाल सकता, विच इज कॉल्ड एज फैक्ट्री एक्सपेंसेस, which is called as factory expenses. Is that clear? तो यहां पर जो फ्रेट है, डॉक चार्जेस है, कस्टम ड्यूटी है, प्रोडक्टिव वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, वेजेस एंड सैलरीज है, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स या गुड्स, ठीक है। और आप देखिए तो आपके जो एक्सपेंसेस दिए हैं परचेज से रिलेटेड वो रेडीमेड गुड्स के भी हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के भी हैं। वेजेस हो गया, प्रोडक्टिव वेजेस हो गया, ठीक है ना, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग एक्सेट्रा ये हो गया, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी हो गया, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? परचेज ऑफ
फॉर परचेजेस से रिलेटेड है, परचेजेस यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इसलिए दे आर ऑल रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. नाउ सो दी ऑन द डेबिट साइड comes the opening stock, purchases and all the expenses that relates to purchase. Is that okay? क्रेडिट साइड में आएगा सेल्स एंड सेल्स रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, यानी बेचा हुआ सामान वापस आया तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड. ओके, सो डेबिट साइड में आ गया परचेसेस, क्रेडिट साइड में आ गया सेल्स. ये दोनों का डिफरेंस जो होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा, मगर वहां पर बहुत कुछ दिया है और लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, good distributed as free samples, good lost in accident, goods withdrawn by partners and closing stock. क्रेडिट साइड में अब इसके दो ट्रीटमेंट हैं. ये जितने भी दिए हैं ये सारे के सारे या तो परचेजेस में से माइनस कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखो. ध्यान दें, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. परचेजेस मान लीजिए 5 लाख का है. कितने का? 5 लाख का. अब उसमें आग से या चोरी से चोरी हो गया सामान जो परचेज किया था 5 लाख का, 20,000 रुपए का. बेचने के लिए एक्चुअली कितना बचा? 4,80,000 बचा. बराबर. आप प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेज, टोटल परचेजेस पर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसलिए मैंने आपसे कहा ये सब आप कहां क्या कर सकते हैं इन सबको? या तो परचेज में से माइनस कर दो, नहीं करना है तो उसको क्रेडिट, नॉर्मल ट्रेडिशन है क्रेडिट साइड में लिखने का. इफेक्ट वही आता है. अब डेबिट साइड में आपने लिखा परचेजेस 5 लाख, क्रेडिट साइड में लिखा लॉस बाय थेफ्ट 20,000, बैलेंस कितना बचा परचेजेस का? 4,80,000. इफेक्ट वही आता है. ठीक है ना? आसान तरीका अपना सकते, वो सबको क्रेडिट में लिख सकते. आई होप यू गेटिंग इट. हेलो एवरीवन. आप ध्यान दो, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक, इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक. समझ में आया क्या? हम वो कहां लिख रहे? क्रेडिट साइड में लिख रहे. पर स्टॉक है तो डेबिट बैलेंस होगा ना, स्टॉक है तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए. वो क्यों लिख रहे हैं यहां पर क्रेडिट साइड में? क्योंकि हम उसको परचेज में से माइनस नहीं कर रहे. आई होप यू हैव गॉट इट. अब ध्यान दो, यहां पर ये जितने भी क्रेडिट साइड में दिए हैं, डेबिट साइड का टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का और सेल्स को छोड़कर क्रेडिट साइड में कुछ जो है उसका टोटल, ये दोनों का डिफरेंस जो निकलेगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है? आप ध्यान दें, यहां पर मान लीजिए कि ये डेबिट साइड का टोटल है आपका, डेबिट साइड का टोटल है आपका 10 लाख रुपए का. ठीक है? ठीक है? और सेल्स को छोड़ दिया और ये सब का टोटल है आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए का. ठीक है? 10 लाख माइनस 1 लाख कितना बचा? दैट 9,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्या? हाँ, 9 lakhs is the cost of goods sold. 10 lakhs minus 1 lakh, difference is 9 lakhs. This 9 lakhs is the cost of goods sold. And now you write the per sales. जो भी दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बनेगा. इज दैट क्लियर? तो ये जो आपको फॉर्मेट दिया है, ठीक है ना, हम उसी को फॉलो करने वाले हैं. परचेज में से क्या क्या माइनस करते चले जाएंगे अगर दिया है क्वेश्चन में तो. ठीक है? करेंगे तो कोई गलत नहीं है, मगर जो फॉलो होता है और बोर्ड एग्जाम में भी जो फॉलो करते हैं स्टेट बोर्ड में, हम वही ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे. इज दैट क्लियर? सो वी विल राइट, इफ इनमें से कुछ भी दिया है तो हम वी विल बी राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक है? और सेल्स को छोड़कर
ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो जो बैलेंस निकलेगा दैट विल ऑलवेज बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और जब सेल्स लिख देंगे तो डिफरेंस जो, अब मान लीजिए यहां पर सेल्स है, सेल्स जो है नेट सेल्स आता है 12 लाख रुपए, ठीक है, सेल्स लिख दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 9 लाख, सेल्स कितना है 12 lakhs, डिफरेंस कितना आया 3 lakhs, that 3 lakhs is the profit, 3 lakhs is the profit, gross profit. I hope that's clear. तो इस तरह जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस कर दें सेल्स को छोड़कर, ठीक है, तो हमेशा हमको क्या मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके, और फिर सेल्स लिख दें, सेल्स के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स का बैलेंस निकाल लें तो क्या मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ट्रेडिंग अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग। इज दैट क्लियर? परचेजिंग एंड सेलिंग। बाइंग कितने टाइप का हो सकता है 2 टाइप का, कौन सा? नंबर 1 रेडीमेड खरीदना और बेचना, दूसरा बनाकर मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी खरीदेंगे दैट विल बी अ पार्ट ऑफ परचेसेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का जो भी खर्च आएगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ purchases. That is the reason why you find all the factory expenses on the debit side of trading account. I hope that's clear. मेरे ख्याल से टाइम हो गया, कितने बजे? 4:30, ठीक है, फिर जगह पकड़नी है। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो।